हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो एंड लर्न कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस वन आई गॉट फ्रॉम पार्थ एंड दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। देखो क्वेश्चन इजी तब होता है ना व्हेन वी गेट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को बिना समझे वी स्टार्ट अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, सो आंसर लाने की हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, उस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो फर्स्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू नीड टू विजुअलाइज द क्वेश्चन केयरफुली, so that in your mind when you close your eyes you can see how the question is in the form of an image। ठीक है, वो चीज हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल गो विद द कॉन्सेप्ट। देन सो दिस शुड बी द प्रोसेस। अब चलो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन वी विल डू द थिंग्स। सो देर आर टू पार्टिकल्स, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, एंड दे आर confined to be always in a circular groove of radius root 17 मीटर। ग्रूव का मतलब जानते हो ना, जैसे आप स्मूथ कोई भी एक सरफेस ले लो, उसमें कुछ कटा हुआ जो स्ट्रक्चर होगा ना, गड्ढा जैसा समथिंग, दैट इज कॉल्ड ग्रूव। ओके, सो दिस इज ग्रूव। यानी कि इसके अंदर आप अगर किसी भी चीज को लीव करते हो तो दैट इज क्वाइट कंफर्टेबली सिटिंग ओवर देयर। देन है, सो कुछ ऐसा है। एट द सेम टाइम द पार्टिकल मस्ट ऑल्सो बी इन अ स्लॉट दैट हैज द शेप ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, सो बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहा है कि देखो while this particle will be in this groove, ये वाला जो रीजन है ये ग्रूव है। ठीक है, so while this particle is in this groove and this particle A and B are moving, let's just focus on A. So A will move like this, let's say. At a time, at certain time, it was lying on this parabola, and this actually this structure, this slot is moving forward. So as it will move forward, this particle will move in such a way that it will make sure that it is always lying on this parabola। ठीक है, so question में ये कह रहा है कि at the same time particle must also be in a slot that has the shape of a parabola। ठीक है, चलो हम ये समझ गए हम। विच हैज एन इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे मिस्टेक है एक्चुअली, x इक्वल टू ऐसे y2 लिखा हुआ है, पैराबोला का इक्वेशन यू नो, एंड इफ इट इज लुकिंग लाइक दिस तो आपको पता है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। देयर इज ऑल्सो गिवन इन द डायग्राम x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, the slot is shown dashed at time t equal to 0, so this slot at t equal to 0 is this one, right? So इसका जो वर्टेक्स है, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, that is at the origin। ठीक है, and what is said, if the slot moves to the right at a constant speed of 3 meter per second, so this slot is moving in this direction with 3 meter per second, so you can say this vertex is moving forward with a speed 3 meter per second। ठीक है, find the speed of A at t equal to 1 second. So we have to find the speed of A at t equal to 1 second. So देखो एक चीज तो हमें क्लियर समझना है कि हमारे पास जो पार्टिकल A है, लेट्स फोकस जस्ट ऑन A बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग आस्क्ड फॉर द A। B पे भी आप कर सकते हो, जैसे देखो t equal to 0 पे A is here, B is here, right? At another time, let's say A has come here, so B has come here, done है, and at another time again A here, B here, and so on। again A will be somewhere here, then here, and then here, and then here, because this slot is moving forward with certain speed। so आपको अगर A की motion की बात करो, it is coming like this, and you can see clearly its x coordinate is changing, its y coordinate is changing, so basically it has velocity in both direction, x and y axis। so somehow if we are able to relate x and y coordinate of particle A, then I mean somehow we can reach to the answer। So let's now work with the equation। हमें ये पता है कि A जो particle है, that is always lying on this groove, and this groove has a equation that is x square plus y square is equal to 17, because this has a radius of root under 17, and this thing, this circle, this point I am taking as 0 0, so if center is at 0 0, equation of this we can write like this। and also there is another information given, that is this point A, particle A will be always lying on the slot। ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी। सो ये जो स्लॉट है तुम्हारा, ये स्लॉट का आप इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका वर्टेक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखना है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोई भी टी टाइम पे ये यहाँ पहुंच गया, सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया,
vt, अगर ये वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, t टाइम पर यहाँ है, so this x distance is how much, vt. So you will be saying here x minus vt equal to y का स्क्वायर, है ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 करोगे यू विल बी गेटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर, t इक्वल टू 1 सेकेंड करोगे यू विल बी गेटिंग x माइनस v इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो v का वैल्यू हियर गिवन इज 3. So x minus 3t is equal to y का square. So this is equation 2. This is equation 1. And this equation 1 and 2 are basically talking about, I mean x और y जो आपने लिया है ना, that is coordinate of a. We can say that, है ना. So if we somehow solve these two equations in such a way that we can get our desired result, we are done, right? So कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है velocity और speed at t equal to 1 second. सो नेट वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है एट 1 सेकेंड. सो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, सो एट 1 सेकेंड वी फर्स्ट नीड टू बी क्लियर ऑफ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा. आफ्टर दैट what will be its vx, what will be its vy. Let's say at 1 second the slot is here, ठीक है. सो 1 सेकेंड पे सपोज मैंने बोला कि स्लॉट यहाँ है इसका वर्टेक्स, सो पार्टिकल इज हियर, सो हियर इट विल हैव vx, इट विल हैव vy. So vx square plus vy का square root under will give us speed, right? So we need to do something with the equations, ठीक है. तो चलो करते हैं. अब हमारे पास इक्वेशन है ना, सो डू वन थिंग, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आप करते हो आपको क्या मिलेगा, देखो dx by dt minus 3 dt by dt equal to 2 dy 2, सॉरी सॉरी, अच्छा हाँ ना, मैंने पहले ही कर दिया, सॉरी, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है. अगर इसको आप करोगे तो वी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2y इंटू वी वाई, है ना, ये रिलेशन हमें मिल गया. अब देखो यहाँ से अगर हमें वी एक्स का वैल्यू निकालना है, वी शुड नो वी वाई, वी शुड ऑल्सो नो वाई थिंग, राइट. सो एक काम करो, इक्वेशन 1 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्यों, क्योंकि वी समहाउ वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन वी एक्स एंड वी वाई, राइट. then only by putting the value of y we can calculate vx or vy, right. so equation 1 को आप फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, you will be getting 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0, ठीक है. सो यू विल बी गेटिंग 2x vx is equal to minus 2y vy, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट. बट आप बोलोगे मैम अभी तो हमारा डन नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें x और y भी पता करना है. तो पता कर लो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड. सो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 and x minus 3t, so that will become x minus 3 for t equal to 1 second, and this is equal to y square, ठीक है. अब आप x माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज x माइनस 3. सो पुट करो, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 17, राइट. सो x स्क्वायर प्लस x minus 20 is equal to how much, 0. So x square plus 5x minus 4x minus 20 is equal to 0. So x plus 5 and how much, x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो मिल रहा है हमें -5, दूसरा मिल रहा है +4. सो विच वन विल बी करेक्ट, +4 विल बी करेक्ट, है ना, क्योंकि देखो स्लॉट इस साइड है और ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है, तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव वैल्यू x का हमें मिलने नहीं वाला इस a पार्टिकल के मोशन के लिए, राइट. सो वी विल बी गोइंग विथ x इक्वल टू +4, ठीक है. सो अगर तुम्हारा x +4 है तो y कितना होगा आप निकाल लो. दिस विल बिकम 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y का स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू +-1. अगेन y का वैल्यू a के लिए क्या होगा तुम्हारा, देखो a के लिए y का वैल्यू होगा प्लस में होगा, राइट. b के लिए जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैंने ये पोजीशन बोला है रेड से जो इंडिकेटेड है, तो यहाँ पे तुम्हारा a है और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, b. सो b का y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, b का y कोऑर्डिनेट विल बी -1, बट a का क्या होने वाला है, +1. सो हम किस चीज से जाएंगे, y इज इक्वल टू वी विल बी टेकिंग +1. सो वी हैव x एंड y का वैल्यूज. नाउ वी जस्ट नीड टू पुट इन थिंग्स एंड गेट द आंसर. अब देखो vx इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि आई जस्ट वांट टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स. इफ
बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करता है ना। तुम जब आंसर आते हुए देखते हो तो तुम्हें मजा आता होगा, आई नो। क्योंकि when I was a student, I mean finally after so much of work, if you are getting answer you feel good. So 2x vx equal to दूसरा क्या है, 2x vx is equal to minus 2y vy. सो अब वैल्यूज को आप पुट करो, ठीक है। x हमारा क्या है, 4 है। सो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, 8 vx इज इक्वल टू हाउ मच, -2y, y का वैल्यू क्या है, +1, सो -2 vy. So this will become this, vx is equal to how much, -4 vy. ठीक है। Now let's put that here, vx -3 is equal to 2, y is 1, vy is how much, -4 by sorry -vx/4. ठीक है। सो दिस थिंग वी आर गेटिंग, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी vx plus vx/2 and this is equal to how much, 3. So this will become 3vx/2 is equal to 3. So vx हमें कितना मिल रहा है, that we are getting 2 meter per second, right? ठीक है। अब देखो vy का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, vy विल बी vx/4 minus vx/4. So that is your vx is 2, so that is your 1/2. Have we done anywhere any mistake? I feel like क्योंकि कुछ तो गलत आ रहा है। x का वैल्यू क्या आया था, +4 आया है ना। So okay, let us recheck here. Vy 2x vx equal to -2y vy है ना। सो यहाँ से हमने x का वैल्यू पुट किया था, 8 मिला था, राइट। सो दिस बिकेम vx इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे हमने देखो मिस्टेक किया ना, vx इज इक्वल टू vy/4 होगा, -vy/4 है ना। सो यहाँ पे हमने यार मिस्टेक कर दिया, देखो। ओके, दिस इज समथिंग आई रियली रियली हेट। बट क्या होता है ना, मुझे स्क्रीन पे जब ज्यादा डिजिट्स दिखते हैं ना, आई रियली गेट कंफ्यूज्ड, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। vx इक्वल टू हाउ मच, -vy/4। अब आप इसको सही से सॉल्व करो। सो vx -3 इज इक्वल टू दैट विल बी हाउ मच, 2y, 2 into y is 1 and vy will be equal to how much? -4 of vx. So that will become how much? Vx minus 3 is equal to, this is your -8 vx. So that will become 9 vx equal to 3. So vx is equal to how much? 1/3 meter per second. ठीक है। अब देखो हमारे पास vy कितना होने वाला है, vy will be 4 vx, right? So that is your 4/3 मीटर पर सेकेंड, डन है। सो टोटल वेलोसिटी तुम्हारा क्या होने वाला है, 1/9 प्लस 16/9, डन है, रूट अंडर, so that will give you how much, root under 17/3. So I hope you have understood this question. There was nothing, just you needed to write trajectories properly, things properly. After that you could have got the answer like this. So I hope you have understood, but somewhere if you got stuck, you can always let me know in the comment section. I'm very much sorry for that last minute silly calculation mistake. Thank you. Bye bye. Take care.